اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی عبدک و حبیبک و رسولک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ بالخصوص ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سندیشہ لے کے آتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بہت ساری محافل اور مجالس ہوتی ہیں، اگرچہ کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی مقام، کسی مہینے اور کسی موسم کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ آپ تو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور دن میں بے شمار دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتی چاہے عمل میں جتنے بھی کمزور ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے لیے گردن کٹانا بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، سعادت سمجھتا ہے۔ اور حضرت خبیب کا واقعہ اللہ ان سے راضی ہو، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جب ان کے قاتل نے شہادت سے قبل ان سے یہ سوال کیا کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی ہو اور تمہیں بچا لیا جائے، تو حضرت خبیب نے جو جواب دیا وہ روز حشر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی طرف سے جواب تھا کہ میری ہزاروں جانیں ہو تو آپ پہ قربان ہیں، میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میرے نبی کو ایک پھانس بھی چبھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ محبت ہے، جو یہ عشق ہے امتیوں کا، یہ ریفلیکشن ہے اس محبت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیا کرتے تھے، کہ قرآن کو کہنا پڑا اور اللہ کو پیار آیا کہ فلا اللہ کا باقی النفس کا، کیا تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم روایات پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تھی تو آپ امتی امتی کہتے تھے، اور قرآن کو کہنا پڑا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، اور مشقت بھی کیسی مشقت، وہ طائف کی وادیوں سے پوچھیں، اور وہ شیب ابی طالب سے پوچھیں، اور وہ مکہ کی گلیوں سے پوچھیں کیسی وہ مشقت تھی۔ لیکن یہاں مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو طریقے اب اختیار کیے ہیں اظہار کے، بالخصوص ربیع الاول کے موقع پہ جو کچھ ہوا جلسوں اور جلوسوں میں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب دیکھتے تو شاید ہم سے برات ہی کا اظہار کر دیتے۔ بہت عزیز خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لاکھوں درود، لاکھوں سلام، اور ہم اور ہمارے ماں باپ ہزاروں بار آپ پہ قربان۔ آپ ایک مکمل شریعت لے کے آئے، آپ ایک جامع شریعت لے کے آئے، اس لیے کہ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنا، اب کوئی نبی نہیں آنا، اب کوئی شریعت نہیں آنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک ریفارمر کی نہیں تھی کہ آپ نے صرف پہنچا دیا اور اپنے حصے کا کام کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، آپ نے ہر آیت کا پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ باتیں کہنے میں تو بہت آسان ہے لیکن کرنے میں قابل عمل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہی ہماری نجات کی واحد شرط قرآن نے قرار دیا۔ کہا گیا سورہ محمد میں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। या लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वरना वरना क्या होगा कि तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएँगे। तुब्तिलू अमालकुम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और हर पहलू में अताअत जब वाज़े तौर पे कह दिया गया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि वो उसवे हसना, वो रोल मॉडल ज़िंदगी की हर शाहरा के लिए है, हर रास्ते के लिए है, हर मोड़ पे अगर हमें इत्तिबा की ज़रूरत पड़ेगी और रोल मॉडल हम तलाश करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही होगी। सूरह आल इमरान में फरमाया गया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, कि इनसे कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह से मोहब्बत का पैमाना ही रसूल का इत्तिबा करार पाया। रसूल की मोहब्बत से आगे कि मोहब्बत को मशरूत कर दिया गया इत्तिबा के साथ, अताअत के साथ। आज के इस सेशन में हम इस हदीस पे गौर करेंगे अपने उन्वान के तनाजुर में। अगर हदीस के इस हिस्से को ही हम समझ लें तो हमारी मौजूदा समाजी हालत में बहुत कुछ तब्दीली वाक़ई हो सकती है। या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अलमरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व हुवा मसऊलुहु, कि औरतें राई हैं अपने शौहर के घर और उनसे मुंसलिक सब चीज़ों पे। और सिर्फ ये नहीं कि औरतें राई हैं, यानी निगरान हैं, निगहबान हैं, बल्कि वह मसऊलुहु, उनसे सवाल किया जाएगा। अब ये सवाल जवाब बहुत अजीज बहनों, बहुत आसान नहीं होगा। रोज हश्र का सवाल और जवाब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पे लाखों दुरूद और सलाम, जब इस सवाल जवाब के मौके का जिक्र करते थे तो आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाया करती थी। कैसे वो सवाल होंगे और कैसे वो जवाब होंगे। तो बहैसियत माँ, बीइंग अ मुस्लिम मदर, आज मेरे और आपके सोचने का मकाम ये है कि वो नौजवान नस्लें जो हमारे घरों में हैं, जो हमारे हाथों में हैं, अगर हमारे बच्चे आज से 50 बरस पहले वाले बच्चे नहीं हैं, तो आज की माँ अगर आज से 50 बरस पहले वाली माँ होगी, तो कैसे वो इन बच्चों के माइंडसेट को पढ़ सकेगी, कैसे वो इन बच्चों की तन्हाइयाँ शेयर कर सकेगी। और इस तेज़ी से बदलते हुए समाज ने, टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हमारे बच्चों को हमसे जितना दूर किया है, जब तक हम अपने बच्चों के करीब नहीं होंगे, इस नौजवान नस्ल के करीब नहीं होंगे, तब तक हम उन मसलों का हल भी नहीं ढूँढ सकेंगे। हमें पता तो हो कि हमारे बच्चों को मसाइल क्या हैं। मेरे 20 प्लस बेटे जब बताते हैं कि उनके दोस्त ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं, कोई स्ट्रेस की दवा ले रहा है, कोई डिप्रेशन में चला गया है और छुट्टियों पे है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, कोई रात को सोने से क़ब्ल नींद की दवा लेता है। तो मैं सोचती हूँ कि हमारे बच्चे, ये नौजवान नस्ल अगर आज तन्हाई का शिकार है, अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं, और मगरिब में तो खुदकुशी रेट बहुत बढ़ा है, तो अगर हमारे ये बच्चे आज समाज में यहाँ पे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ख्वाहिशात, हमारी वो नातमाम ख्वाहिशात जो हम खुद नहीं पूरी कर सके, हमने उन बच्चों के काँधों पे डाल दी और हमने ऐसे बोझ लाद दिए कि जिन्हें हमारी नौजवान नस्ल उठा नहीं पा रही। कि अभी बच्चा छोटा होता है, किंडरगार्टन में होता है,
प्राइमरी स्कूल में होता है और हम अपने बच्चे के कानों में ये डालना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें कामयाब बिज़नेसमैन बनना है। यानी हम अपने बच्चों से सोचने की सलाहियतें छीन लेते हैं और उनके करियर हम सेट करते हैं और उन्हें इस दौड़ में लगा देते हैं। अब बच्ची चाहे फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखती हो, लेकिन माँ की ख़्वाहिश ये होती है कि बच्ची डॉक्टर बने। मेरी एक दोस्त एक गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो उसने मुझे बताया कि मेरे स्कूल की बच्चियों की माँ को ये ख़ब्त है कि उनकी बच्चियाँ डॉक्टर बने। जो बच्चों की माँएँ हैं, उनको ये ख़ब्त होता है कि बच्चे कम से कम इंजीनियर बने। एक दौड़ लगी है कि मेरे इन-लॉज़ में बच्चे इंजीनियर हैं, बच्चियाँ डॉक्टर हैं। तो हमने अपने बच्चों को इस धुन में लगा दिया कि हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा पुरतायुश हो और ज़ाहिर है कि करियर का मतलब आजकल सिर्फ़ एक लिया जाता है और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना। जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो कौन-सी कामयाबियाँ हैं, ये मैं और आप भी जानते हैं कि कौन अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग कर सकता है, कैसे बिलियनर बनते हैं। जो बड़े और कामयाब लोग हैं, वो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का फ़न जानते हैं। हक़ाइक़ तो बहुत तल्ख़ हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो बच्चे जिनको हम करियर सेट करके दे देते हैं कि तुम्हें ये बनना है इसलिए कि मैं ये चाहती हूँ। वो एक इंसान जो अल्लाह की तख्लीक एक नया वजूद है, वो क्या चाहता है और वो क्या सलाहियतें लेके आया है, उससे ज़्यादा अहम ये है कि वालिदैन बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। तो हमारे बच्चे वही बन रहे हैं जो हम चाहते हैं। हर बच्चा अपने ख़ानदान का अक्स है, हर बच्चा अपने वालिदैन का अक्स है। और अगर ये मैं ये कहूँ तो क्या गलत कहूँगी कि वो बच्चे जिनको हमने अपनी मर्ज़ी से अगर बच्चा चाहता था कि वो ज्योग्राफिया का मज़मून पढ़े, अगर बच्चा चाहता था कि वो हिस्ट्री पढ़े, लेकिन हमने बच्चे से कहा कि नहीं उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। फिर जब हम उन बच्चों के लिए ज़ौज की तलाश में निकलते हैं, तो आप अपने दिल पे हाथ रखिए कि जो मेज़रिंग टेप हम अपने घरों से लेके निकलते हैं, क्या हमारे बच्चों की ये ख़्वाहिश होती है कि उनकी होने वाली ज़ौजा ऐसी हो या वो मेरी और आपकी ख़्वाहिशें होती हैं कि हम किस-किस पैमानों से अपने घर लाने वाली दुल्हन को जाँचते हैं, इसी तरह जो दामाद के मयारात हैं। कुरान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ने खोल के हमें बता दिया। कफ़ू की सारी शराइत हमारे पास दर्ज हैं। उसमें पहली शर्त ये है कि और तो सब कुछ देखा जाए, लेकिन सबसे ऊपर दीनदारी को रखा जाए। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, बात है सच बोलने का, कि मैं और आप जब अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए ज़ौज का इंतख़ाब करते हैं, तो वाक़ई हमारी पहली शर्त दीनदारी होती है या हम दीनदारी भी देख लेते हैं। अब अगर हम मसूल हैं, हमसे सवाल किया जाएगा, तो क्या एक मुसलमान माँ को नहीं पता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं आलात मूसीक़ी को तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ और आज हमने उसको सक़ाफ़त समझ के कबूल कर लिया। कौन-सा घर है जहाँ पे इस बात को मायूब समझा जाता हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कहा है मूसीक़ी को, लेकिन हमने उसे कोई-कोई रंग दे के हम उसको जायज़ समझ लेते हैं कि ये तो सूफ़ियाना कलाम है, ये तो नात शरीफ के पीछे है, ये तो अच्छा कलाम है, ये तो फलाँ का कलाम है। इसी तरह अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल हया मिनल ईमान, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये बातों में से एक बात नहीं थी कि ये अच्छी बात है, हया भी कर लिया करो, ऐसा नहीं था। हया इस दीन की बुनियाद थी। हर मज़हब का
एक शार होता है और इस्लाम का शार ही हया थी। इससे ज़्यादा क्या सख्त अल्फाज़ होंगे कि जब तुम हया ना करो, तो तुम्हारा जो जी चाहे करो। और हमने हया को एक अच्छी सिफ़त के तौर पे तो अपनाया, लेकिन ये हमारे दीन की बुनियाद है। हमने ये तसव्वुर हमारे ज़हनों में मांद पड़ता चला गया। और सिर्फ़ ये नहीं कि लिबास की हया या मीडिया पे आने वाले बेहयाई के प्रोग्राम, अब हम उसको आदत समझ के और ट्रेंड समझ के कबूल कर चुके हैं। हया की अक़दार तो इतनी आला थी कि मुझसे और आपसे कहा गया था। इस्लाम की जो तालीमात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान और हज़रत अली करमुल्लाह वजहों के लिए थी, वही पूरा कुरान, वही पूरी शरीयत मुकम्मल जिस तरह उनके लिए लाज़िम थी, उनके लिए खुली हुई थी, इसी तरह मेरे और आपके लिए भी खुली हुई है। हमारी अक़दार तो ये थी अज़ीज़ बहनों, कि अगर फल खाओ तो छिलके बाहर ना फेंको, कि कहीं पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो। मुमकिन है कि उनके बच्चे ताज़ा फलों से महरूम हों, लेकिन हम गिरते-गिरते यहाँ तक आए कि आज हम जहाँ खाना खाने जाते हैं, अच्छे खाने हमारी टेबल पे होते हैं, हम उसकी फ़ोटो लेते हैं और उसको फ़ेसबुक पे डालते हैं, ग्रुपों में डालते हैं और वाह-वाह समेटते हैं। और हुआ क्या कि हमारे गली मोहल्लों में हर फूड स्ट्रीट बनती चली गई। हम एक दिन में जो गुफ्तगू करते हैं, हमारे बच्चे जो बाहम गुफ्तगू करते हैं, उनमें कितना हिस्सा सिर्फ खाने-पीने से मुताल्लिक़ होता है। जब जाना होता है तो कहाँ अच्छा खाना मिलता है। कभी साल भर में एक बार भी हम कहते हैं कि चलो किसी लाइब्रेरी चलते हैं। हमारे शहर कराची में जो बिलख़ुसूस शाम से रात तक लाखों डील्स घरों में जा रही होती हैं, उनमें से किसी एक में भी कोई लाने वाला कभी किताबें लेके नहीं आता कि अगर सेल और चीज़ों पे लगती है, ब्रांडेड मलबूसात पे लगती है, तो किताबों पे भी लगती है। कि हमने अपने कल्चर को खुद तब्दील किया और अब हुआ क्या कि बहुत सारा खाते-खाते और अनबॉक्साम की लज़्ज़तें लगते-लगते अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दिमाग के बजाय शिकम से सोचने लगी। बहुत अजीज बहनों, बात हकीकत है और हकीकत को बयान किया जाना चाहिए कि ईमान के 3 दर्जे बताए गए थे और उसमें कमज़ोर तरीन दर्जा ये था कि तुम बुराई को कम से कम दिल में तो बुरा जानो, कुव्वत से ना रोक सको, ज़बान से ना कह सको, लेकिन अगर तुमने दिल में भी बुरा नहीं जाना, तो गोया तुम ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे से भी गुज़र गए। आज अगर आपको प्रोफ़ेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाने का इत्तेफ़ाक होता हो, आपका मख़लूत तालीमी इदारों में जाने का इत्तेफ़ाक होता हो, ना भी होता हो तो चौक-चौराहों पे हमें बच्चियाँ नज़र आती हैं। वो बच्चियाँ जिन लिबासों में होती हैं, क्या आप कह सकती हैं कि ये बच्चियाँ मुसलमान घरानों से निकली हुई बच्चियाँ हैं? कि बूढ़ी माँ तो सतर का भी अच्छी तरह और हिजाब का भी ख़्याल रखती है, लेकिन जो जवान बच्ची को हम इसलिए समाज के रंग में रंग देते हैं कि यही ट्रेंड है और ये बच्चियाँ हमसे ज़्यादा समझदार हैं। गोया इनको पता है कि इनको कैसे रहना है और कैसे क्या लिबास इख्तियार करना है। तो बहुत अज़ीज़ बहनों, बात इससे भी आगे है कि जब हमने हया खोई, तो बहुत कुछ खो गया। और अगर आज उम्मत मुस्लिमा इस हाल को पहुँची है, उसकी बहुत बड़ी वजह ज़ाहरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो खुशकी और तरी में फ़साद बपा हुआ है, ये और किसी वजह से नहीं बपा हुआ। ये मेरे और आपके वो अमाल कि जब हम ज़मीन से आसमान की तरफ सरकशियाँ भेजते हैं, तो आसमान से वबाएँ उतरती हैं और जब हम ज़मीन से अर्श की तरफ नाले भेजते हैं,
आहें भेजते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार भेजते हैं, तो आसमान से रहमतें और बरकतें उतरती हैं। एक शादी की तकरीब को ले लीजिए, जो निकाह मिन सुन्नती है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन उस एक सुन्नत को पूरी करने में हम कितनी अल्लाह की हुदूद को पामाल करते हैं। फ़ुज़ूल खर्ची से लेके दुल्हन दूल्हा के सिर्फ़ 1-2 दिन के लाखों रुपए जोड़े और लाखों रुपए की ज़ियाफ़तों से लेके जो हम स्टेज फ़ोटोग्राफ़र के हवाले कर देते हैं, जिसको हम लाखों में बुक करते हैं और फिर हमारी वो बच्ची जो भाई के दोस्त के सामने तो नहीं आती और अब्बा के दोस्त अंकल को तो ड्राइंग रूम के पर्दे के पीछे से चाय पेश करती है, वो जो उस बच्ची की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है जब वो दुल्हन बनती है। पूरा ख़ानदान उसकी वो दुल्हन बनी तस्वीर डिस्प्ले पे लगाता है, ग्रुप्स में एक-दूसरे को भेजी जाती हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, फ़ेसबुक पे डाल के हम खुश होते हैं कि तुम्हारी तस्वीर को इतने लाइक मिले, इतने सुभान अल्लाह और इतने माशाअल्लाह। तो ये अगर हम अब से 2 नस्ल पहले की माँओं को भी बताते कि जिन घरों में ज़नान खाने और मर्दान खाने होते थे, कि अब से 2 नस्ल के बाद महज़ ये ज़माना होगा कि जब वो बच्चियाँ, वो बाहया ख़वातीन, पहले तो लड़कियाँ, अब तो मिडिल एज की ख़वातीन भी फ़ेसबुक पे रोज़ अपनी तस्वीर बनाना, लगाना, डीपी पे अपनी पिक्चरें डालना, कोई भी मायूब नहीं समझती। बहुत अज़ीज़ बहनों और बच्चियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस वक़्त कुरान उतरा, जो माशरा तश्कील पा रहा था, वो आज से बहुत ज़्यादा पाकीज़ा माशरा था। अगर उन ख़वातीन को ये कहा गया, अगर उस दौर के मर्दों को ये कहा गया कि पर्दे के पीछे से काम की चीज़ माँगो, अगर उन औरतों को कहा गया कि रास्ते में सिमट के चलो, अगर उन पाकीज़ा औरतों, जिनकी हम पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हैं, अगर उनसे कहा गया कि ऐसे ज़ेवर ना पहनो, जिसकी झंकार से दूसरा मुतवज्जा हो, ऐसी खुशबू ना लगाओ, जो दूसरे तक पहुँचे और लोचदार आवाज़ में बात ना करो, अगर उन औरतों से कहा गया था, तो क्या आज हम खुद को बरी-ज़िम्मा समझते हैं? क्या हम ये समझते हैं कि कुरान उस दौर के लोगों के लिए था और उनकी ज़्यादा ज़रूरत था, या आज हमें उनसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने माशरे में इन अक़दार और रवायात को प्रैक्टिस करें? कुरान ने कहा था, वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वक़्त की कसम खाई थी, ज़माने की कसम खाई थी कि इंसान खसारे में है, और वो खसारा हम अपने अतराफ़ देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सारी ज़िंदगी माँगा, आपकी दुआओं की किताबें हम सबके घरों में हैं। ज़रा एक बार फिर देखिए कि उनमें कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क़ की दुआ माँगी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए वाफ़र रिज़्क़ की, ऐशो-इशरत की, तन आसानी से ज़िंदगी गुज़ारने की, उनके वसी कारोबार, तिजारत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ की हों या तरग़ीब दी हो, जान रखिए, जो चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे लाखों दुरूद और सलाम आपने नहीं माँगी थी, वो रिज़्क़ था, वाहिद रिज़्क़ था, जो आपने नहीं माँगा, और प्रैक्टिकल आपने करके उम्मत को दिखाया कि ना सिर्फ़ ये कि रिज़्क़ माँगी जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि बस इतना रिज़्क़ रखो कि जो तुम्हारे मकसद ज़िंदगी में हाइल ना हो, तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान हिजाब ना बन जाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाक़े की हालत देखकर रो पड़ती थी, इज़्तिराब से आपके पेट पर हाथ फेरती थी,
जो फाके से दब गया था, अर्ज करती, मेरी जान आप पर कुर्बान, खुदा के लिए इतना तो कबूल कर लीजिए जो जिस्मानी कुव्वत को कायम रखने के लिए काफ़ी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मुझे दुनिया से क्या काम, मेरे भाई उलुल अज़्म रसूल इससे भी सख्त हालात में सब्र करके गए हैं। अगर मैं आसूदगी की ज़िंदगी बसर करता हूँ, तो मुझे शर्म आती है कि कल मैं उनसे कम ना रह जाऊँ। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है, वो यही कि मैं अपने इन भाइयों यानी उलुल अज़्म रसूलों से जा मिलूँ। और ये भी हम सब ने रिवायत पढ़ी हुई है कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मिलने तशरीफ़ ले जाते हैं और देखते हैं कि कमरे में एक चटाई बिछी हुई है और एक कोने में जौ रखे हैं और दीवार के साथ बकरी की खाल लटक रही है और आपके जिस्म मुबारक पर चटाई के निशानात हैं। आप दीदा हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसर कसरा के शहंशाह तो ऐश इशरत के मज़े लूटें और आपके जिस्म पर ये चटाइयों के निशानात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए उमर, मुझे दुनिया से क्या सरोकार। ये इकबाल ने इन लफ्ज़ों में ढाला कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच फ़कीरी में नाम पैदा कर। आप जानिए आज कौन मोटिवेशनल स्पीकर है जो हमारी नौजवान नस्ल से कहे कि फ़कीर बनने के ये तरीक़े हैं, या कम माल होगा तो कम हिसाब होगा, या ये कि माल और दौलत से बड़ी चीज़ मकसद ज़िंदगी है और वो मिशन है जो हमें दे के भेजा गया। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर तो ये बताते हैं कि बिलियनर कैसे बना जाता है, और अगर बिलियनर बनना है तो बिल गेट्स 6 बजे सो के उठता है, तुम भी 6 बजे उठा करो। दुनिया के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो अलग सुबह उठते हैं। एक हिंदू मुसन्निफ की किताब पिछले साल वो बेस्ट सेलर का उसे एज़ाज़ मिला पूरे साल। आप यूट्यूब के ऊपर 5 एएम लिखें मुसन्निफ के नाम के साथ, तो आपको पता चलेगा कि 5 एएम क्लब के कितने लाखों मेंबरान हैं। यानी हिंदू और अंग्रेज ये बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठना कामयाब लोगों की सिफत है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज से 1400 बरस पहले ये बता के गए थे कि फजर में कितने खजाने छुपे हैं, और फजर की सुन्नतों का जो अज्र है वो दुनिया और माफिहा की नेमतों से ज़्यादा है। आज ये स्पीकर्स हमारे बच्चों को बताते हैं 10,000 आवर्स सक्सेस थ्योरी कि अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो आपको इब्तदाई 10,000 घंटे लगाना होंगे एक कामयाब इंसान बनने के लिए। तो ये 10,000 आवर्स की स्टोरी है। अब नौजवान ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है जो एक बड़ा कामयाब बिजनेस है, तो मैं 10,000 घंटे मुताला कर लूँ। अगर मुझे अच्छा खिलाड़ी बनना है तो मैं 10,000 घंटे अपनी फिजिकल फिटनेस को दे दूँ। अगर मुझे अच्छा गुलकार बनना है तो 10,000 घंटे यानी लगातार जिंदगी के 2.5 साल। अब बहुत अजीज बहनों, बहैसियत मुसलमान माँ, ये थ्योरी अगर सामने आई है कि 10,000 घंटे लगाने ही होंगे, अगर ये वक्त हमारे बच्चे फहम कुरान में लगाएं, कुरान में गौता जन हो, जभी इकबाल कहते हैं कि जिद्दत किरदार नसीब होती है। कौन इन बच्चों को बताएगा कि ये जिंदगी एक बार मिली है,
رزق کے لیے جو جدوجہد تم کرتے ہو تو رزق لکھا جا چکا ہے، لیکن علم تمہاری اپنی کاوش سے ملے گا، حکمت تمہاری اپنی کاوش سے ملے گی، قرآن کا فہم تمہیں اپنی کاوش سے ملے گا۔ تم فقیہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں وہ فقہ، وہ سمجھ، وہ شعور اپنی کاوش سے ملے گا، وہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ رزق تو اللہ نے متعین کر دیا، وہ جنگلوں میں شیر اور چیتے کو بھی رزق دیتا ہے جن کو من و تن و غذا چاہیے ہوتی ہے، وہ چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، وہ سمندر کی سیپی کو بھی رزق دیتا ہے اور پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ جس رزق کے حصول کو ہم نے اپنے بچوں کا کیریئر بنا دیا، رزق کا حصول کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن رزق کے حصول کو مقصد زندگی بنانا، پیشن بنانا، کہ بچے بہت سارا کماتے ہیں، بہت خوش نصیب ہے وہ جن کے گھروں میں بہت ساری آمدنی آتی ہے، جن کا لائف اسٹائل، جن کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ سب سے اچھا ہوتا ہے، ہم ان سے مروب ہوتے ہیں۔ ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ اللہ نے کتنا وافر ان کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کا اسوہ، اگر اسوہ حسنہ ہے، اگر ہمارے لیے رول ماڈل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ سکسیس اسٹوریز دے کے نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچیومنٹ کہہ کے نہیں گئے، اس کو زندگی کی معراج کہہ کے نہیں گئے کہ امریکہ کا ویزا آنا، گرین کارڈ ملنا گویا ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ فلاں ملکوں میں بستے ہیں اور ایک اعلیٰ معیار زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو جو قوموں کی ہمیں قرآن ہسٹری بتاتا ہے، جو ان کے عبرت کے واقعات قرآن نے جو تاریخ بتائی، وہ بھی الف للوی داستانیں نہیں ہیں سننے اور سر ڈھونڈنے کے لیے۔ تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ قوموں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب استکبار فی الارض تھا، یعنی سرکشی اور خود سری اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا اور شریعت کو نظر انداز کرنا اور زندگی کی لذتوں کے پیچھے لگ جانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے اور ایک دن میں بھوکا رہوں، جس دن میں بھوکا رہوں تو اس سے گڑ گڑاؤں، فریاد کروں، اس سے مانگوں، اور جس دن میں کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں۔ اب اگر کہنے والے یہ کہیں کہ اس وقت تو سبھی کے ایسے حالات تھے، اس وقت تو مخلوق الحالی تھی، اس وقت تو اسرت تھی، ایسا نہیں ہے عزیز بہنوں۔ یہ جس وقت کی روایات ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے بڑھ رہی تھی۔ آپ کے سفیر دنیا بھر کے شہنشاہوں کے پاس الٹیمیٹم لے کے جا رہے تھے کہ یا جزیہ قبول کرو یا سرنڈر کرو یا اسلام قبول کر لو۔ اس وقت خراج اور مال غنیمت ساری دنیا سے مدینے کی طرف دریا کسی روانی سے بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اگر فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر 2 دن لگاتار چولہا نہیں جلا یا 2 دن ہم نے لگاتار جو کی روٹی نہیں کھائی، یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کے گھر میں سونے اور چاندی بوریوں میں آتا تھا اور آپ 2 نمازوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملاً یہ بتا کے گئے کہ اس دنیا میں ایسا دل لگانا کہ جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، مقصد زندگی سے غافل کر دے، تمہاری آخرت بلا دے۔ آپ ہی جانیں یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ملینز کا جنہوں نے کرپشن کیا ہے، یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ نہ سمجھ نہیں ہیں، یہ اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو نیب کو مطلوب ہیں۔ اگر یہ علم جو ہمیں حق اور ناحق کی تمیز نہ سکھائے، جو ہمیں دنیا کا ایسا اندھا بندہ بنائے، اس علم کا حصول
تو مسلمانوں پہ فرض نہیں کیا گیا تھا؟ تو بہت عزیز بہنوں، جو اللہ نے سورہ اعراف میں کہا کہ پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی اور ان سے غفلت برتی تھی۔ تو ہم اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہوئے، ان سے غفلت برتتے ہوئے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے، تو یہ شفاعت کا کیسا عقیدہ ہے جو ہمیں گمراہی پہ آگے سے آگے لے جاتے اور ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہا کہ اگر دوسری امتوں پہ یہ عذاب نازل ہوئے اور ہمارے اوپر جو عذاب نازل ہوتے ہیں، ہم کبھی اس تناظر میں جائزہ نہیں لیتے کہ اگر کورونا سے ہزاروں لاکھوں اموات ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے، کورونا کی اتنی بڑی عالمی وبا کے بعد ہمارے گھر میں کیا چیز بدلی؟ ہمارے گھروں اور ہماری اولادوں کے رہن سہن اور ہمارے شب و روز میں کیا تبدیلی واقع ہوئی؟ اور آخری بات یہ کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام اور زیادہ ہونا چاہیے، دروس کی محفلیں اور زیادہ ہونا چاہیے، بلا شبہ ہونا چاہیے، لیکن صرف تبلیغ سے شر خیر سے نہیں بدل سکتا، اس کے لیے قانون اور حکومت کی طاقت مطلوب ہوتی ہے۔ ابھی ترکی پچھلے ہفتے میرا جانا ہوا، تو جب ہم گائیڈ سے کہتے تھے، تعریف کرتے تھے وہاں کی ترقی دیکھ کے، تو وہ کہتا تھا کہ یہ سب اردوان کے دور کی ترقی ہے، کہ وہاں 50% سے زائد عورتیں اگر ہمیں نقاب کی بھی نظر آئی، تو ہمیں بتایا گیا کہ چونکہ خود خاتون اول حجاب لیتی ہیں، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ایسی عورتوں کو رکھا ہے، اس لیے یہاں حجاب عام ہو گیا۔ تو یہ اقتدار کی طاقت، یہ قوت اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کرتا ہے جن کا سدباب قرآن نہیں کر سکتا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے کتاب اور میزان کے ساتھ لوہے کے اتارنے کا ذکر کیا، یعنی سیاسی اور جنگی طاقت کا حصول۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سفارشات لے کے نہیں آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام عدل کو قائم کر کے دکھایا۔ جب تک حکومت صالحین کے پاس نہیں ہوگی، آپ کیسے نظام تعلیم بدل سکتے ہیں؟ وہ نظام تعلیم جو سیلف سینٹرڈ افراد پیدا کر رہا ہے، جو خود غرض افراد پیدا کر رہا ہے، جو کامیابیوں کے تصور ہی وہ دے رہا ہے جو ایک مسلمان کی کامیابی کا تصور نہیں ہے۔ نظام معیشت کیسے بدلے گا جب تک حکومت صالحین کے ہاتھ میں نہیں ہوگی؟ پھر اسی طرح نوجوان ڈپریشن کا شکار ہوں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کا مستقبل کیا ہے اور ان کی صلاحیتوں کی ضرورت ملک کو ہے بھی یا نہیں ہے، اور وہ دوسرے ملک جانے اور ویزوں کے انتظار میں ان کی جوانیاں گزریں گی۔ نظام معیشت اگر صالحین کے ہاتھ میں ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے ملک اور قوم کے استحکام کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف نہ کرے۔ تو اللہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، آپ کا اسوہ جو پورے کا پورا روز روشن کی طرح کھلا ہوا ہے ہمارے سامنے، اگر سیرت کی کوئی بھی کتاب نہ ہو خدا نہ خواستہ، تو قرآن ایک مکمل کتاب ہے سیرت کو سمجھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کافی ہے ہمیں قرآن کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ دجالی فتنوں کے اس دور میں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہم سے کچھ ایسا کروا لے کہ ہم اپنی نسلوں کے ایمان کے لیے جو پریشان رہتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا نظام حکومت دے، ہمارے گھروں کے ماحول ایسے ہوں، ہماری
تعلیم گاہیں و افراد نکالیں کہ جو سچے مسلمان ہوں۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہماری نسلوں کی شیطان اور دجالی فتنوں کے اس دور میں حفاظت کرے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔